Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Town hall. There is evidence of a structure which may have been an assembly hall or a town hall. Means in the Indus Valley civilization we find a great building that may be called an assembly hall or a town hall where people used to gather and discuss on some matter. तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में से हमें एक बहुत बड़ा हॉल भी देखने को मिला है जिसमें लोग इकट्ठे होकर कुछ बातें या कुछ डिस्कस करते होंगे. नेक्स्ट इज हाउसेस एंड स्ट्रीट. द हाउसेस वेयर 2-storied and built on either side of the streets. The number of rooms varied from 2 or 20, and each houses had a central courtyard and bathing area. Evidence of a circular oven and a mortar and pestle have been found. Houses were separated by a network of roads cutting each other at right angle, forming a grid-like pattern. The entrance of the houses never faced the main road but opened towards secondary road and smaller alleyways. The primary or main street pointed in the north to south direction, whereas secondary street stretched from east to west. Corners were rounded, which suggests that the planner kept the difficulty of turning cars in mind. Now, from this paragraph, we come to know about houses and street. Okay, so generally houses were of 2 floors. They were built on road, on any side of the road. Okay, they were big as well as small also. Between the house there is a center space, we can say. Every house there is a space, as well as there is a bathing area. In houses, oven where we cooked, that oven cooked place is also found, and there is a mortar and pestle, means from that space we can crush something. Houses were at right angle where 2 roads meet and form a grid. The entrance of the houses were towards the small road, means the entrance of the house is not from the main road but it is towards the small road, and the main street is towards the north to south, and the secondary street, means the small road, is facing east to west. In this way we can see the system of houses and street. And on the road where the turn comes, the turn is not at a right angle but it is curved in shape, so the cart can turn easily. Students, तो इस पैराग्राफ में हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के घर और स्ट्रीट यानी गली
किस तरह से बनी होती थी वो जानने को मिलता है। तो अधिकतर घर जो है 2 मंजिल के होते थे, कुछ घर छोटे भी होते थे और कुछ घर बड़े भी होते थे। हर घर के बीच में एक जगह होती थी जिसमें वे उठना बैठना करते थे। एक तरफ बाथिंग एरिया, नहाने की जगह भी बनी हुई होती थी और एक तरफ जो है ओवन यानी कि चूल्हा और मॉर्टर एंड पेसिल मतलब कूटने के लिए जो चीज़ें होती है वो भी रखी होती थी, जिससे कुछ चीज़ें कूटकर वे अपना खाना तैयार करते थे। और जो घर होते थे हमेशा जो है राइट एंगल पर होते थे, रोड की सीध में होते थे, जहाँ पे 2 रोड काटते हैं जिसको हम ग्रिड कहते हैं। उस तरह से रोड बने हुए होते थे और उस रोड पर घर होते थे। और उन घरों का जो एंट्रेंस यानी कि जाने का, घर में जाने का जो गेट होता था वो हमेशा मेन रोड पे ना होकर पीछे छोटा रोड होता था वहाँ से होता था। और जो मेन रोड होता था उसकी डायरेक्शन नॉर्थ साउथ होती थी और जो छोटा रोड होता था उसकी डायरेक्शन ईस्ट से वेस्ट होती थी। इस तरह से वहाँ पे घर पाए गए हैं। साथ ही जिस रोड पर टर्न होता था या जब मोड़ होता था रोड पर, वो हमेशा गोलाकार में होता था, जिससे कार्ट यानी कि बैलगाड़ी या कोई भी गाड़ी हो, घोड़ा गाड़ी, वो आराम से जो है मुड़ सके। इस बात को ध्यान में रखकर गोलाकार में सड़क का मोड़ बनाया जाता था। ड्रेनेज सिस्टम। The drainage system in these cities was very impressive. The drains were watertight, which prevented the leakage of dirty water. Wooden screen filtered solid waste and prevented it from getting washed away by water. As a result, clogging and overflowing of dirty water was avoided. There were inspection hole and detachable cover, which made the process of cleaning easily. The house drain were connected to the main drain. Now, from this paragraph, we come to know about the drainage system, means the water which was used, and that water is drained through the canal. So this canal is made well planned. The canal is well tight so the water cannot be leakage, and every canal have a screen filter, means one type of cover where all the waste is prevented and only water washed away. As a result, the canal is not overflow, and in this way only the water go away and the dust or garbages will remain there. In this way, there is a detachable cover, means all the wastage remain at one place. In this way, the drainage system was constructed, and every house drainage system is connected to the main drainage system. ओके, तो ड्रेनेज सिस्टम में किस तरह से हम लोग
देख सकते हैं या ड्रेनेज सिस्टम किस तरह से बना है वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो वो ड्रेनेज सिस्टम एकदम टाइट होती थी, जिसमें से पानी है नहीं जा सकता था, नहीं निकल सकता था, और वहाँ पर एक कवर रखा जाता था जिससे सारा कचरा है वो रुक जाए और खाली पानी ही आगे जा सके। इस तरह से जो है कभी भी उनकी ड्रेनेज सिस्टम है वो ओवरफ्लो नहीं होती थी और गंदा पानी अटकता नहीं था। तो इस तरह से जो ड्रेनेज सिस्टम है उसका प्रोसेस बहुत ही अच्छे से चलता था और इजीली वो क्लीन भी हो जाती थी। घर की हर एक घर की ड्रेनेज सिस्टम है वो मेन ड्रेनेज सिस्टम से कनेक्ट भी होती। द लाइफ एंड ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल। ओके, फार्मिंग वॉज एन important occupation of the Harappa civilization. People grew rice, wheat, barley, pulses, peas, sesame, linseed, and mustard. Plough and sickles were used, and different methods of irrigations were adopted. Means what? From this line we can say that the main occupation of the Harappa civilization was agriculture, farming. Okay, they cultivate, means वो उगाते थे different grains and pulses like rice मतलब चावल, wheat यानी गेहूँ, barley यानी जौ, pulses यानी अलग अलग दालें, peas यानी कि हरे मटर, सीसम यानी कि तिल, लिनसीड एक अलसी होती है जो सीड्स तिल से थोड़ी बड़ी होती है, एंड मस्टर्ड यानी कि राई या सरसों। तो इस तरह से वे अलग अलग अनाज और दालें उगाते थे। प्लॉगिंग एंड सिकल वेयर यूज इन डिफरेंट मेथड, मतलब प्लॉगिंग यानी कि जोतना। तो इस तरह से वो जोतने के लिए, खेत को जोतने के लिए अलग अलग मेथड भी यूज़ करते थे और खेती में इरिगेशन भी करते थे यानी कि सिंचाई भी करते थे अपनी फसलों को। सिकल एक इंस्ट्रूमेंट होता है फार्मिंग के लिए यूज़ करने के लिए। ओके, तो इस तरह से वो फार्मिंग अलग अलग मेथड से भी करते थे और इरिगेशन यानी सिंचाई भी करते थे। Apart from that, they also rear animals for milk. Fishing was another occupation they engaged in. Their seal reflect their awareness of animals like goat, sheep, bison and hummed bull. मतलब कि rather than agriculture, खेती के उपरांत दे रियर एनिमल्स ऑल्सो, एनिमल्स को भी पालते थे, फिशिंग भी करते थे, वो भी उनका एक काम था, उसमें भी वो जुड़े रहते थे। और जो सील मिले वहाँ से, द सील्स वी गॉट फ्रॉम द हरप्पा सिविलाइजेशन, ऑन दैट सील वी सी द डिफरेंट carving of different animals like goat, sheep, bison and humped bull. तो बकरी, शिप यानी भेड़, बैसॉन यानी एक ऑक्स ही होता है मगर वो वाइल्ड जैसा होता है, और हम्प्ड बुल, तो बुल भी जिसको हम बैल कह सकते हैं। तो इस तरह के एनिमल्स के सील भी वहाँ होते थे। तो हम समझ सकते हैं कि वो एनिमल्स के लिए कितने अवेयर थे। उनके लाइफ में एनिमल्स है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता था एनिमल्स का। ओके, वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट द सिटीज वेयर वेल प्लान्ड. दिस टेल अस दैट there were people who planned the construction of building and street in the cities. Most probably this work was done by the ruler
Scribes were people who could write on the seal. And in this paragraph, we come to know about the well-planned town, that we have already learned how they construct the buildings and street and houses of the city. Okay. This construction was built by the ruler, यानी कि वहाँ पे जो शासन करता था वे लोग गांव की बिल्डिंग्स और स्ट्रक्चर्स को कंस्ट्रक्ट करवाते थे। और जो स्क्राइब्स होते थे यानी कि जो लिखते थे उनको स्क्राइब पीपल कहते थे। तो लिखने का काम स्क्राइब पीपल करते थे अलग अलग सील के ऊपर, मोहरों के ऊपर। ओके, नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ। मैनी पीपल वेर एंगेज इन डिफरेंट काइंड ऑफ क्राफ्ट्स। पॉटरी मेकिंग was an important occupation. Most of the pots were redware and were used to storage pots and barrel container. Means along with agriculture, rearing of animals, fishing and construction work, scribe people as well as people do the craft वर्क ऑल्सो। क्राफ्ट वर्क मीन्स कारीगरी, जैसे कोई मेटल का कार्विंग हो गया, पॉट मेकिंग हो गया, ओके, वीविंग हो गया, ये सब एक है क्राफ्टशिप में हम कह सकते हैं। तो पॉटरी है वो उनका इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन होता था। पॉटरी यानी कि मिट्टी से चीज़ें जो बनाते हैं छोटी बड़ी, उसको कहते हैं पॉटरी मेकिंग। तो इस तरह से मोस्ट ऑफ द पोट्स वेयर रेड वेयर, तो रेड जो है कलर के होते थे और वो स्टोर करते थे। क्या स्टोर करते थे? ग्रेन्स को, ओके, अनाज को स्टोर करते थे। एंड द बैरल कंटेनर, तो बैरल यानी कि हम कह सकते हैं कि जो मरे हुए लोग होते थे उसको भी वो बड़े बड़े पोट में दफनाते थे। Evidence show us that the people also knew how to spin cotton. They also know how to spin cotton means how to make a cotton cloth. From cotton they make thread and from thread they weave the cloth. यानी कि बुनते थे इस तरह की, हाथ से वो मशीन भी एक होती थी जो हाथ से चलाते थे और कपड़े को भी उस समय के पीपल बुनते थे, वीव करते थे। तो इस तरह से पॉटरी के साथ जो है वो स्पिनिंग भी करते थे, यानी कि वीविंग का काम भी, बुनने का काम भी उन्हें आता था। आर्कोलॉजिकल हैव फाउंड स्प्लिंडर विच वेर यूज टू स्पिन, मतलब यहाँ पे बुनने का एक मशीन, ठीक है, तो वो भी आर्कोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट को मिला है। द एविडेंस ऑफ ऑर्नामेंट्स प्रूव दैट दे लाइक टू एडorn themselves with ज्वेलरी विच वेर मेड ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड bronze bits. After that, we see that the people used to wear ornaments also made up of silver, gold and bronze. तो ब्रोंज तो आपने पहले ही सीख लिया है कि ब्रोंज क्या होता है, एक मेटल है जिसको हम कांस्य भी कहते हैं। तो उनके वो ऑर्नामेंट्स जो हैं पहनते थे। डिफरेंट डिफरेंट स्टोन्स के मोती बना के गोल गोल आकार देकर उस मोती से भी वो ऑर्नामेंट्स बनाते थे। और स्पेशली कौन से स्टोन होते थे? लाइक लैपिस lazuli, agate and carnial were used for making these beads. और ऐसे स्टोन से वे लोग बीड्स बनाते थे, गोल गोल आकार मोती के जैसे, और फिर उससे ऑर्नामेंट्स भी बनाते थे. There were also special workshops where the people made different things like bronze, sculpture and artifacts. Means from bronze. तांबे से वे लोग स्कल्पचर यानी अलग अलग मूर्तियाँ भी बनाते थे और आर्टिफैक्ट्स यानी कि छोटे बड़े ऑब्जेक्ट्स भी
बनाते थे, छोटी बड़ी चीज़ें भी तांबे से बनाते थे। ब्रोंज यानी कांसा, ओके, कांसे से भी वे बनाते थे। कॉपर एंड ब्रोंज वेर ऑल्सो यूज टू मेक वेपन्स एंड टूल्स लाइक नाइफ्स एंड रेजर्स। तो इस तरह से कॉपर थोड़ा सॉफ्ट होता था, उसके साथ टीन मिलाकर वो वेपन्स भी बनाते थे और साथ साथ नाइफ्स यानी छुरियाँ भी बनाते थे। और इस तरह से वो कॉपर और ब्रोंज का यूज़ भी करते थे, स्कल्पचर बनाने में भी, वेपन्स बनाने में भी, और रेजर्स यानी कि छोटी बड़ी छुरियाँ, ब्लेड, एक शार्प ब्लेड को हम रेजर्स कह सकते हैं। सम वेसल्स मेड फॉर थिन मेटल शीट हैव ऑल्सो फाउंड। तो वेसल यानी कि बड़े बड़े घड़े जैसे बर्तन, बड़े बड़े जो पतली पतली शीट से, पतले पतले कॉपर और ब्रोंज़ के लेयर से वो वेसल बर्तन भी हमें मिले गए हैं। while the grown ups were engaged in different craft and skill ऑब्जेक्ट। और इस तरह से जो थोड़े बड़े उम्र के लोग होते थे वो अलग अलग क्राफ्ट यानी कि जो है स्किलफुल काम में जुड़े हुए होते थे। और चिल्ड्रंस क्या करते थे? द चिल्ड्रंस अम्यूज देमसेल्फ विथ गेम्स सच एज मार्बल, रैटल्स, मोबाइल टॉयज, कार्स एंड व्हील्स। तो उनके छोटे मोटे खिलौने होते थे जैसे कि मार्बल्स, जो आप भी छोटे होते थे तो खेलते थे। मोबाइल टॉयज़ यानी कि जिसको लेकर उसके नीचे पहिए होते हैं और वो पहिए से आगे चलाकर लेके जा सकते हैं, ऐसे टॉयज़, व्हील्स एंड रैटल्स, मतलब जिसमें आवाज़ आए, इस तरह के खिलौने।